Welcome students. Today we will continue again our discussion on Lagrange's theorem and its consequences. In the last lecture we have discussed some properties of cosets, and we have seen that the cases when two left cosets are equal, or similarly we can say when two right cosets are equal. And then we proved some properties. In fact, we stated these 9 properties about that. And among these properties, we proved up to 7th, I hope, that the cardinality of uh, I'm I'm just telling about the cardinality because as of now we have not proved that HA is a subgroup of G. So this is a question, and this question is answered here in the 9th part. Okay. So in these two sets, AH and H and BH, two left cosets, they always have same cardinality. So this is an important result. Okay. Maybe the set both set may not be same, but their cardinality will be always same. Okay. Fine. So let us start. Uh, let us discuss the proof of 8th part. So it says that uh, one left coset equals to right coset if and only if H equals AH A inverse. So here in this set, what we see, the elements are of the type A, H and A inverse. इस सेट में ये किसके मेंबर होंगे? ये होंगे मेंबर ए एच ए इनवर्स के मेंबर होंगे, जहां पे एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच में. ठीक है. सो कोई भी जब हम ग्रुप लेते हैं तो उसके एलिमेंट का स्ट्रक्चर ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी के बेस पे हम आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल, this is very simple proof. So what we can say, H AH equals to HA. Okay, so this implies that AH just operate A inverse from the right. So what we get? HA A inverse. So this implies that AH A inverse this is minus equals to H, and this is identity, of course, so this will give us H only. Fine. Because H is a subgroup and identity belongs to this one, so we have used this property. Fine. So कोई भी एलिमेंट जब H में बिलोंग कर रहा है तो A जो है H में एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट देगा. फाइन. मतलब वही सारे एलिमेंट देगा जो H के हैं, मे बी डिफरेंट ऑर्डर में हो बट आएंगे वही. फाइन. सो ये था, यही हमें प्रूफ करना था. So this implies that H is equals to AHA inverse. Fine. So this was a simple proof. And then the important thing is that this one, 9th part, HA सबग्रुप कब बनता है? ठीक ना. और ये तब बनेगा HA सबग्रुप जब A H में बिलोंग कर रहा है. फाइन. So let us see the proof of this one, 9th part. Okay. We need to prove HA is a subgroup of G if and only if A belongs to H. Okay. So let us suppose AH, that the left coset, is a subgroup of G. Fine. Then because क्योंकि ये सबग्रुप है, क्या ये सबग्रुप है, E must be identity. All right, must be in AH. फाइन होगा इसमें.
ठीक है ना। और AH सब ग्रुप है, E जो है AH में बिलोंग कर रहा होगा। साथ ही साथ हमारा जो E और H तो सब ग्रुप पहले ही था, है ना। H क्या था, H सब ग्रुप पहले ही था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हमने ये सपोज किया है, अभी प्रूफ नहीं किया, हमने ये सपोज किया है कि AH क्या है, सब ग्रुप है। अगर इस जब तक सब ग्रुप नहीं होता तब तक हम गारंटीड नहीं कह सकते कि AH में आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब ग्रुप हमने सपोज किया है, इसलिए A यहाँ पे होगा। और since H is also subgroup of G, so आइडेंटिटी जो है H में भी होगा, ठीक है ना। सो आइडेंटिटी कहाँ बिलोंग करेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। फाइन, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी मस्ट बी मेंबर ऑफ EH इंटरसेक्शन AH ऑफ कोर्स। सो एक एलिमेंट एटलीस्ट बिलोंग कर गया, सो दिस ये क्या नहीं होगा, फाई नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट ये नहीं होगा। फाइन, या तो टू लेफ्ट कोसेट सेम होंगे या फिर वो क्या होंगे, टोटली डिसजॉइंट होंगे। समझ रहे हो, नहीं कल देखा था ना हमने, ये वाला देखा था, इससे ही देख लो आप, है ना। तो क्या होगा ये, मैंने इसका डायरेक्ट यूज नहीं किया, इसके थ्रू बताया था अभी। अब इसको अगर लगा के देखेंगे तो अगर टू लेफ्ट कोसेट या तो टोटली डिसजॉइंट होंगे या फिर वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों लेफ्ट कोसेट है, ये डिसजॉइंट है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, EH हैज टू बी AH, ठीक ना। अब ठीक है, यस सर। बाई प्रॉपर्टी ऐसे लगा दो, बाई प्रॉपर्टी, which property was this one, this was the fifth property, ठीक है, बाई प्रॉपर्टी 5। ओके, अच्छा ये इंप्लाई कर देगा H इक्वल टू क्या हो गया, AH हो गया, बट ये कब होल्ड होता है, दिस इंप्लाई A belongs to H। A belongs to H, ठीक, फाइन, ओके। अच्छा अब हम इसका कन्वर्स लेते हैं, ठीक है, कन्वर्स ले, conversely let A belongs to H, then by property 2 से क्या है, AH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, एंड H क्या है, सब ग्रुप ऑलरेडी है G का, है ना। so this implies that AH is a subgroup of G। fine, what property 2 says, AH equals to H if and only if A belongs to H। फाइन, सो यहाँ से हम देखेंगे, हमने क्या जूम कर लिया, AH में बिलोंग कर रहा है, AH में बिलोंग कर रहा है तो इफ एंड ओनली इफ वहां पे है तो AH H के इक्वल हो जाएगा, बट H किसका सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है, तो AH भी G का सब ग्रुप हो जाएगा, और ये कंप्लीट कर देता है प्रूफ हमारा। चले आगे, क्लियर है सर, इज इट होल्ड फॉर every A belongs to G? कौन सी प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी सर। 9th प्रॉपर्टी, हाँ, AH is a subgroup of G if and only if A belongs to H। अगर A जो है, देखो जो H में H का मेंबर हो, G के मेंबर तो है ही, आप ये कह रहे हो H का मेंबर ना हो, केवल G का मेंबर हो, तो वो सब ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है यहाँ पे। कल हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे, आपको अगर ध्यान होगा तो हम लोगों ने ऐसे देखा था ना, Q8 में देखा था, Q8 में जो एलिमेंट्स थे +-1 +-i +-j +-k ऐसे थे, ठीक है। और H हमने सब ग्रुप लिया था इसका, हमने 1 ले लिया था, -1 लिया था, i लिया था और नेगेटिव i लिया था, ठीक है, ये इसका सब ग्रुप है।
अब हम बात करते हैं किसकी, H, और एक ऐसा एलिमेंट उठाते हैं HJ उठाते, JH उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, J हो गया, नेगेटिव J हो गया, और JI क्या हो गया, नेगेटिव K, और JI और नेगेटिव ये तो फिर K हो जाएगा, ठीक है। 4 एलिमेंट्स मिले। अब ये सब ग्रुप है क्या, दिस इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ Q8, ठीक। अब वहीं हम इसी का एलिमेंट उठाएं, H का एलिमेंट उठाएं, तो H का एलिमेंट तो G का Q8 का एलिमेंट है ही, ठीक है। ये हमारा ये जो है Q8 ये बड़ा सा है और इसमें H छोटा सा है, ठीक है। तो H के सारे एलिमेंट Q8 के एलिमेंट तो होंगे ही, ठीक है ना। लेकिन अगर वो एलिमेंट जो Q8 का एलिमेंट तो है, जैसे यहाँ पे J है और K है, प्लस माइनस J प्लस माइनस K, तो ये एलिमेंट इसके मेंबर नहीं है, ठीक है ना, H के मेंबर नहीं है। तो इस वजह से अब इसी में देख लो, अब IH निकाल लो, IH कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, I आएगा, नेगेटिव I आएगा, ठीक है ना। और ये नेगेटिव सॉरी -1 हो गया, -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये खुद ही ये H के इक्वल है ना, फाइन। ऐसे ही आप माइनस नेगेटिव IH लेंगे तो भी ऐसे ही होगा, नेगेटिव I हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, ये भी H के इक्वल है। ऐसे ही 1H करोगे तो पूरा H हो जाएगा, नेगेटिव 1H करोगे तो भी ये H होने वाला है, फाइन। तो जैसे ही H का मेंबर होगा तो H के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए वो सब ग्रुप बन जा रहा है। और वो मेंबर अगर जो H का मेंबर नहीं है, केवल इसका मेंबर है, Q8 का मेंबर है यहाँ पे, तो नहीं बनेगा। अब क्लियर है, चले आगे। अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम, दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेस थ्योरम। अभी तक हम लोगों ने ग्रुप और सब ग्रुप के ऑर्डर्स के बारे में बात किया, इन केस ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बारे में। वहां पे हम लोगों ने देखा था क्या देखा था कि कोई अगर G ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना, साइक्लिक ग्रुप, और H इसका सब ग्रुप है, तो H का ऑर्डर जो H जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये हमने प्रूफ किया था इन केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। और Yes, जो sir. है इफ एंड ओनली इफ, वहां पे किया था हमने इफ एंड ओनली इफ, कि अगर H सब ग्रुप है तो G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है उसका ऑर्डर, तो वो एक उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा इसके पास में। ये चीज हम लोगों ने देखा था, और हमने ये भी देखा था कि वो सब ग्रुप जो है AN/K से क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। ये चीज वहां पे देखी थी हमने। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस था, साइक्लिक ग्रुप के लिए था। इन जनरल अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इन जनरल में ये थ्योरम कहता है, लैग्रांजेस थ्योरम कहता है कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, G फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है ये, ठीक है ना। G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H जो है ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ G है, फाइन। सो ये कहते हैं अगर ऐसा होल्ड होता है, यानी H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ये इंप्लाई करेगा, अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ H शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, ठीक। फिर ये कहते हैं कि मोर ओवर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स आर G/H। तो जो G/H का रेशियो आएगा उसको ये कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ लेफ्ट या राइट कोसेट्स होते हैं। जैसे अभी हमने बनाए ना यहाँ पे, तो डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स अभी अगर और हम निकालेंगे, कोसेट्स की बात कर रहे हो ना, और हर कोसेट सब ग्रुप नहीं होता, ये भी ध्यान रहे। तो डिस्टिंक्ट कौन से है इसमें से, एक तो हमारा देखो ये है, एक H हो गया, ये सारे H के इक्वल हैं, ठीक है ना, ये सारे H के इक्वल हैं। दूसरा ये हो गया, ठीक। ऐसे ही -J से मल्टीप्लाई करोगे तो एक वहां से मिलेगा, -K से करोगे तो एक वहां से मिलेगा, यहां से ये करोगे ना तो ये सब सेम मिलने वाले हैं। मतलब आप कोई भी सब ये सब ग्रुप पे डिपेंड करता है, सब ग्रुप लीजिए और फिर देख इनसे मल्टीप्लाई करके डिस्टिंक्ट देख लीजिए कितने सब ग्रुप्स मिल रहे हैं वहां पे, डिस्टिंक्ट कितने कोसेट से मिल रहे हैं वहां पे, ठीक ना। तो जो अभी हम लोगों ने लिस्ट किया ये सारे नहीं है,
लेकिन हाँ इतने हैं कि डिस्टिंक्ट इसमें हम काउंट कर सकते हैं। एक तो ये खुद है और एक दूसरा है। अभी तक हम लोगों ने दो डिस्टिंक्ट काउंट किए हैं यहाँ पे, दो नंबर्स, ठीक है ना। ऐसे ही आप h जो है के एच निकाल लीजिए, नेगेटिव के एच निकालिए, ऑफकोर्स ये दोनों सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए हम तो एक यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना, एक यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल अभी 3 हो जाएंगे। और भी आप देख लो, और मिलेगा क्या डिस्टिंक्ट? और नहीं मिलेगा डिस्टिंक्ट, ठीक ना, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट पहले से ही है। एक इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा अलग सा, एक इसके करस्पॉन्डिंग अलग मिलेगा, ठीक है। ओके, तो k से मल्टीप्लाई करोगे तो k माइनस के हो जाएगा, और k और j, k और i ये j होगा, ठीक है ना, k और i j होगा। तो आप देख लेना, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी में से कोई आ रहा हो। तो k h देखते हैं हम, इसमें k देखेंगे और माइनस k देखेंगे, है ना। और क्या i रहेगा, i k क्या हो जाएगा, नेगेटिव j हो जाएगा, और फिर वो j हो जाएगा। तो ये कितना है, j माइनस j, k माइनस k, यही आ रहा है ना। तो टोटल 2 ही मिलेंगे, है ना, टोटल 2 ही मिलेंगे इसमें, डिफरेंट लेफ्ट या राइट कोसेट, फाइन। सो ये कह रहा है कि ये नंबर जो इनको डिवाइड करने पे आएगा उसको हम r से डिनोट करेंगे, या फिर इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ h इन g, इंडेक्स ऑफ h इन g, ठीक ना, ये कहते हैं हम इंडेक्स ऑफ। आगे हम डेफिनेशन में इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये है हाँ, ये इंप्लाई कर रहा है कि अगर सब ग्रुप हुआ तो उसका ऑर्डर डिवाइड करेगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना। उसका हम एग्जांपल देखेंगे। हम लोगों ने ये देखा था किसमें, कि अगर वो ग्रुप साइक्लिक होता है तो कन्वर्स भी इसका ट्रू हो जाता है ना, इस टाइप के थ्योरम का। कोई नंबर अगर डिवाइड कर रहा है साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को, तो उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में कुछ चीजें हैं कि मैं जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बाद में करूंगा, अभी इसका मैं प्रूफ करवा देता हूँ, ठीक है ना। लेट a1h a2h up to arh denote the distinct लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट ले लीजिए या राइट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोसेट्स ऑफ h in g, ठीक है। देन फॉर each a belongs to g, ah equals to aih for some i। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल जो यहाँ देख रहे थे ना, तो किसी ना किसी के इक्वल कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लीजिए तो कोई ऐसा एक मिल जाता है जिसके इक्वल होगा। जैसे ये जे एच है, तो एक हमें क्या मिल गया, माइनस ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे के मिल गया, और माइनस के ऐसा मिल गया, सो दैट कि ये दोनों सेम हो जा रहे हैं ना। जे एच क्या हो जा रहा है, किसके सेम हो जा रहा है, माइनस जे एच के भी इक्वल हो रहा है, और के एच के भी इक्वल हो रहा है, माइनस के एच के भी इक्वल हो रहा है, ये सारे के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कोसेट्स और बन सकते हैं, लेकिन उसमें से हम केवल वो कोसेट्स ले रहे हैं जो डिस्टिंक्ट हो, जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो, फाइन। अगर एक भी एलिमेंट इसमें से कॉमन हुआ एक दूसरे में तो वो दोनों सेम हो जाएंगे, जैसा हम लोग अभी देखा था प्रॉपर्टीज, फिफ्थ प्रॉपर्टी शायद हम लोगों ने उसमें देखा और प्रूफ किया, ठीक है। सो आल्सो ए जो है ए में एच में बिलोंग करेगा, ये हमने पहली प्रॉपर्टी थी, इसको हमने प्रूफ किया था। 10 ईच मेंबर, अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी मेंबर जी का उठाए तो किसी ना किसी कोसेट में लाई करेगा, है ना, किसी ना किसी कोसेट्स में लाई करेगा ही करेगा वो। ईच मेंबर ऑफ जी बिलोंग्स टू one of the cosets,
AIH किसी एक में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। एंड दस जी को हम कैसे लिख सकते हैं, जी को एज यूनियन के फॉर्म में हम लिख पाएंगे। दस ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिसजॉइंट है ना। दस फॉर disjoint cosets AH we can write A1H union A2H union union ARH। ये डिस्टिंक्ट कोसेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इस कोसेट में, इस कोसेट में, इस कोसेट में, किसी भी कोसेट में कुछ कॉमन नहीं है, अदरवाइज वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ए किस में बिलोंग कर रहा है, AH में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें AI भी बिलोंग कर रहा होगा। AI किस में बिलोंग कर रहा होगा, AI जो है हमेशा AIH में बिलोंग ही कर रहा होगा, है ना, ठीक है। AIH में बिलोंग कर रहा होगा। अगर ऐसे इस तरीके से बिलोंग कर रहा है तो AIH इसकी कार्डिनलिटी और दूसरी की कार्डिनलिटी वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। या फिर ऐसे समझ लो कि AIH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये AIH का मेंबर AIH में बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है ना। सो इसको हम लिख पाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई कर देगा G A1H, ठीक है, एंड प्लस ये हो गया हमारा A2H, फाइन, एंड प्लस डॉट 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 प्लस ARH। क्यों, क्योंकि ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये डिसजॉइंट्स है, ठीक है, ये डिसजॉइंट हम ऐसा लिख पा रहे हैं। सो हमने लिखा G इक्वल्स टू A1H की कार्डिनलिटी, A2H की कार्डिनलिटी एंड प्लस डॉट 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 प्लस ARH की कार्डिनलिटी, ठीक है। और अब हम ये जानते हैं कि A1H लिखिए या फिर H लिखिए, यहाँ पे एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये वाला रिजल्ट है, तो यहाँ से कोई दो लेफ्ट कोसेट लेंगे, ठीक है ना, उनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम होती है, उनकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो इनकी कार्डिनलिटी जो है, इनकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, H के इक्वल होगी, है ना। EH भी तो एक लेफ्ट कोसेट लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी ये क्या हो गया, H हो गया, तो ये भी लेफ्ट कोसेट है, तो इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। ऐसे ही इसकी कार्डिनलिटी लेफ्ट कोसेट है, इसकी भी सेम होगी, ये भी कार्डिनलिटी सेम होंगी। और ऐसे जो H होंगे इनके कितने नंबर्स रहेंगे, R टाइम्स, है ना, ये R टाइम्स हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ H हो जाएगा, फाइन। सो दिस इंप्लाइज दैट, सर यस, ये रिपीट कर दीजिए सर ये। अच्छा ठीक है। आप ये प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं इसमें, यहाँ पे सेवेंथ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई दो लेफ्ट कोसेट होते हैं तो उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है कि नहीं होती है, लेफ्ट कोसेट की कार्डिनलिटी यस सर सेम होती है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि जो है A1H जो है ये लेफ्ट कोसेट है, ये भी लेफ्ट कोसेट है ना, तो इनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे भी देख लो, कोई भी दो, ये देखो कोई भी ले रहे हो, इसमें कोई भी कोसेट ले रहे हैं, सबकी कार्डिनलिटी सेम आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो अब जैसे यहाँ पे लिया 1H लिखा ना, तो इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी सेम है कि नहीं है ना, सेम। और वही हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, सेवंथ प्रॉपर्टी में यही हमने प्रूफ किया था कि दो कोई कोसेट्स लेंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, ओके। तो ये हो गया, इसलिए हमने इन दोनों की, हम ये नहीं कह रहे कि A1 जो है H इक्वल्स टू H हो गया, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं, है ना। ये तो तभी होगा जब A1 जो है H का मेंबर होगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल A1 जो है कहाँ के मेंबर है, G के मेंबर है, ठीक है, A1 G के मेंबर है। तो एटलीस्ट वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो उनके नंबर, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो G इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ G इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ H। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि H डिवाइड कर रहा है, H की कार्डिनलिटी डिवाइड कर रही है किसको, या H का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है किसको, G को डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
ओके फाइन। Yes, sir. अब इसी को जो डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर क्या हो गया, G बाई H। यहाँ पे नोट द क्वांटिटी और ऑब्लिक नंबर, whatever we say, number are such that G by H, ठीक है ना, कार्डिनलिटी ऑफ G बाई कार्डिनलिटी ऑफ H, या फिर ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करते हैं, G कॉलन H से, ठीक है, और वर्टिकल लाइन के ऐसे के बीच में, is called index of a subgroup H in G। तो ये जो नंबर आ रहा है ना, ये नंबर, इसको हम इंडेक्स कहेंगे किसका, H का हम इंडेक्स कहेंगे इन G में। फाइन। सो ये है आपका नेक्स्ट कोरोलरी, ये लिखा हुआ है कि G कॉलन H, इसके जो ये डिनोट किया हुआ है G बाई H को। तो इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H इज ए सब ग्रुप, देन G बाई H इक्वल्स टू, बाई डेफिनेशन ही वैसा किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये नोट काम आ जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल इतना ही लिखा हुआ है नोट, क्योंकि G कॉलन H को इसके कार्डिनलिटी को ऐसे ही, इस नंबर को ऐसे डिफाइन कर दिया, G H को डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट, नंबर ऑफ, आखिर यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स थी तो A1, A1H, A2H, ARH, ये डिफरेंट कोसेट्स है ना, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ठीक है ना, कोसेट्स ऑफ H इन G। फाइन। ओके, सो नेक्स्ट है कोरोलरी, ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। आई डोंट नो कि, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि हम लोगों ने ऐसा शायद किया था एक बार, है ना। सो एनीवे, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर। सो प्रूफ, अच्छा उसका काउंटर एग्जांपल अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। लेट G का ऑर्डर हमने n सपोज कर लिया, ठीक है, एंड A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू m सपोज कर लिया, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट A टू द पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ऑल राइट, कंसीडर, अब इसका तो हम वो बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, इससे जो जनरेट हो रहा हो, ए क्या जनरेट करेगा, एक ग्रुप जनरेट करेगा, है ना, जिसका ऑर्डर कितना होगा, क्या होगा ऑर्डर इसका, m होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ A m होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू सपोज H, ओके, देन ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू m। फाइन। सो इस ग्रुप के पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना, एक सब ग्रुप है। सो हियर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, है ना, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, एंड सो बाय Lagrange's थ्योरम सब ग्रुप का ऑर्डर किसको डिवाइड करना चाहिए, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। फाइन, दैट इज ऑर्डर ऑफ H should divides ऑर्डर ऑफ G। so this implies that ऑर्डर ऑफ H क्या है, m है, so divides ऑर्डर ऑफ G। so this implies that, but m क्या है, m जो है इसका भी ऑर्डर है, A का भी ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर ऑफ A should divide ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। सो ये प्रूफ हो जाता है रिजल्ट यहाँ पे।
and then we have this. Okay, so we have another result. Every group of prime order is cyclic. ठीक है, this is also important result कि हर और जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, ठीक ना। सो प्रूफ यहाँ पे गिवन है, बस मैं थोड़ा सा वो कर दूंगा आपका। ओके फाइन, इसको हम सपोज कर ले, लेट जी का ऑर्डर जो है ये प्राइम है, पी जो है हमारा प्राइम है, ठीक है ना, एंड कोई एलिमेंट ए है वो जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, ए जो है आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है ना। देन अभी हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए जो है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, किसको डिवाइड करना चाहिए, पी को, है ना, फाइन। और अगर ए एलिमेंट जो है वन आइडेंटिटी नहीं है तो इसका ऑर्डर वन तो होगा नहीं, ऑर्डर ऑफ ए कैन नॉट बी वन, फाइन, क्यों, क्योंकि ये ए इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो पी के कौन से डिवाइजर होंगे, ए हैज टू बी पी, है ना, ए का ऑर्डर क्या होगा, पी होगा, फाइन। सो ये एलिमेंट का ऑर्डर पी होगा, एंड जो एक ए जो ग्रुप जनरेट करेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ए जो ग्रुप जनरेट करेगा इसका ऑर्डर भी क्या होगा, पी होगा, है ना। आखिर ए में कौन से एलिमेंट होंगे, इस जो जनरेट करेगा ए स्क्वायर, है ना, अप टू पी माइनस ए टू द पावर पी माइनस वन, ये एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इसका ऑर्डर पी होगा। सो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारा, इसका ऑर्डर हमारा पी हो गया, और ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, ठीक है ना। तो जब ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक है, दिस इंप्लाइज दैट जी इज साइक्लिक। यानी कुल मिलाकर के एक ए ऐसा एलिमेंट इसमें है, एक एलिमेंट ए ऐसा है किसमें, जी में, जिसका ऑर्डर पी है, तो इसका मतलब वो उसको जनरेट कर रहा होगा, है ना, जी को जनरेट कर रहा होगा, कहने का मतलब ये है। किसी भी ग्रुप में, फाइनाइट ग्रुप में अगर एक एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो वो साइक्लिक हो जाएगा और वो उसका जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। दिस सेज दैट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। यस सर, जो पहले वाली थर्ड उसका यस कन्वर्स ना सर, नहीं नहीं नहीं, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, हम आगे देखेंगे, अभी तो हम कह नहीं सकते वैसे, ठीक है ना। आई डोंट नो कि आप लोगों में सेलो ग्रुप है, सेलो थ्योरम्स है कि नहीं है, कोई ऐसा आप बताइए ग्रुप जिसका ऑर्डर, जैसे हम बात करें जेड की बात करें, जेड एन की बात करें, ठीक है ना, जेड एन अंडर एडिशन मॉडुलो एन, इस ग्रुप की बात करें तो ये कैसा होता है, साइक्लिक होता है, ये साइक्लिक होगा ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एन, यस सर, है ना, इसका है ना, इसका वन इसको जनरेट हमेशा करेगा, आप जो कह रहे हो ना, इसमें वन जो है जनरेट हमेशा करेगा। अब तो वन जो है जनरेट कर देगा पूरे किसको, जेड को जनरेट करेगा, है ना, जेड को जनरेट करेगा। तो ऐसे ही आप जेड फोर लीजिए, फोर तो प्राइम नहीं है ना, जेड फोर में 0 1 2 3 ये आ जाएंगे, और वन को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना, वन का ऑर्डर
1 का ऑर्डर कितना है? 1 का ऑर्डर 4 है ना? सो ये जनरेट हो जाएगा किससे? 1 से जनरेट हो जाएगा, बट 4 इज नॉट ए प्राइम। ठीक है ना? सो इसका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब ठीक है? Yes, sir. ओके ठीक है, तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉल those results, so but anyway we are able to recall that counter example. चलिए आगे चलते हैं कि in a group G which is of finite order, if there is an element A, then A to the power order of G is identity. ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि A की पावर M अगर आइडेंटिटी हो रहा है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ A जब भी होगा, फाइन, ऑर्डर ऑफ A क्या होगा? या तो M के इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा, है ना? तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A का ऑर्डर हमेशा क्या होगा? G के ऑर्डर से इक्वल होगा या उससे कम होगा। यानी किसी भी ग्रुप में, इन एनी ग्रुप, in fact finite group, order of element cannot exceed order of group. ठीक है ना? Note, order of element cannot exceed the order of group. फाइन, ओके, तो ये कंक्लूजन है इसका। सो अभी इसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या कि a टू द पावर, ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि a बिलोंग्स टू, अगर g है एंड g इज फाइनाइट, ओके, सो ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ये पता है हमको। सो दिस इंप्लाइज दैट G जो होगा, this is equal to some k times of order of A, fine, for some k belongs to positive integer. Okay, so this implies that A to the power order of G, this is equals to A to the power k order of A, this is equals to A to the power order of A, इसकी पावर k, ये आइडेंटिटी टू द पावर k है और ये क्या हो गया? e हो गया। सो हमने प्रूफ किया a टू द पावर ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से इस कोरोलरी का एक कंक्लूजन भी हम लोगों ने दिया। ये कंक्लूजन है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कांट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। फाइन, ओके, सो हाउ मच टाइम लेफ्ट? 10 minutes more. Okay, fine. There is another result which is called Fermat's little theorem. It is one of the conclusion of Lagrange's theorem. ठीक है ना? So इसको प्रूफ करने के लिए हम रिकॉल करेंगे, let us recall, UN जो होता है, ये क्या होता है? UN is the set of positive integers less than n and relatively prime to n, ठीक है ना? prime to n is a subgroup, sorry, is a group, is a group under multiplication modulo n, ये हमें पता है, ठीक है? और if n is prime, ठीक है, if n is prime, say p, अगर n प्राइम हमारा p, सो यूपी में कितने एलिमेंट्स होंगे? यूपी में एलिमेंट्स होंगे phi ऑफ p, है ना?
फाई जो है ये ऑयलर्स फाई फंक्शन है, याद है आपको फाई ऑफ एन जब हमने डिफाइन किया था, है ना? इसमें फाई ऑफ एन ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन, है ना? ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है इसके फाई पी के इक्वल हो जाएगी, और पी प्राइम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पी से छोटे हैं और इससे रिलेटिवली प्राइम है कितने होंगे? पी माइनस 1 होते हैं। ठीक है, ये आ रहा है ना? रिकॉल कर पा रहे हो आप? ये बताया था। यस सर। ठीक है ना? सो अब कोई भी प्राइम ले लो, अब जैसे 5 ले लो, तो ऐसे नंबर ढूंढो जो 5 से छोटे हों, तो क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसमें से जो रिलेटिवली प्राइम हो 5 के, तो सारे के सारे होंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इन केस ऑफ प्राइम ना, अगर ये प्राइम रहता है तो p-1 हो जाते हैं, और कंपोजिट रहता है तो फिर हमने एक रिजल्ट आपको बताया था, फाई ऑफ m इंटू n इक्वल्स टू फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। फाइन, याद आ रहा है आपको? ये चीज किया था, तो ये चीज ध्यान रहे आपको कि हम लोग ये इसकी कार्डिनलिटी अगर p प्राइम है तो p-1 ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव फर्दर। So if A is relatively prime to n और A बिलोंग कर रहा है UN में, तभी तो बिलोंग करेगा, ठीक ना? रिलेटिव प्राइम टू n। सो A की पावर जो है UN का ऑर्डर, UN का ऑर्डर क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, ग्रुप का ऑर्डर। अभी हमने देखा था ना ये थ्योरम, इसमें है ना? ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी एक्चुअली में इसमें आइडेंटिटी क्या कौन सा है होता है? 1 होता है ना, इक्वल्स टू 1 होता है। सो इन पर्टिकुलर क्या हो गया? a टू द पावर, इसकी कार्डिनलिटी कितने के इक्वल है? फाई n के इक्वल है ना? फाई n इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 हो गया, और इसमें ऑपरेशन कौन सा है? मॉडुलो n का। ठीक है ना, यहाँ पे भी हम मॉडुलो n लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ठीक है, सो टेक इसमें रिजल्ट क्या दिया हुआ है? p प्राइम की केस में दिया हुआ है, ठीक ना? अदरवाइज हम ऐसे लिखेंगे, एक रिजल्ट तो अगर हम प्रूफ करने को आता तो ये प्रूफ गया, ठीक ना? दूसरा क्या है? टेक n इक्वल्स टू p दैट इज प्राइम, देन a to the power phi of p has to be equals to, अब यहाँ पे equals to लिखा हुआ है जो, तो ये इस सेंस में लिखा हुआ कि ये ग्रुप है, तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे ये देखोगे ना, तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है, ये इक्वल्स टू का साइन है। अदरवाइज यूजुअली ये कांग्रुएंस लिखा जाता है, कांग्रुएंट टू a, कांग्रुएंट टू b मॉडुलो n। तो कांग्रुएंस भी एक इक्वल ही होता है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली हम ग्रुप की बात कर रहे थे, यहाँ पे इक्वलिटी है तो हम वही इक्वलिटी ही लिख रहे हैं। a टू द पावर 5p हैज टू बी इक्वल्स टू 1 मॉडुलो p। ठीक, तो a टू द पावर क्या हो गया? p-1 इक्वल्स टू 1 मॉडुलो p। ये इंप्लाई कर देगा, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a टू द पावर p कांग्रुएंट टू a मॉडुलो p। ठीक है ना? ओके, सो ये रिजल्ट ये प्रूफ कर देता है। फाइन, ये आज का लास्ट रिजल्ट था। अब मैं आप लोगों को विद इन 2-3 मिनट्स आई विल गिव ए काउंटर एग्जांपल टू दिस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक है ना? ये क्या कहता है? अगर कोई H सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर G को डिवाइड करेगा। हम एक ऐसा एग्जांपल देंगे, ठीक है ना, जो नंबर डिवाइड तो कर रहा होगा, यानी नंबर डिवाइड कर रहा हो लेकिन वो सब ग्रुप ना हो। ठीक ना, इसका काउंटर एग्जांपल ये होगा। सो लेट अस नोट
the converse of Lagrange's theorem need not be true. Need not be true. ठीक है ना। अब अगर ये कन्वर्स ट्रू नहीं है तो इसका एग्जाम्पल होगा, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। The alternating group A4 is a subgroup of S4, ठीक है ना। एंड A4 का ऑर्डर कितना है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 24 divided by 2, that is 12. Here 6 divides order of A4. 12 को 6 divide कर रहा है, that is 6 divides 12. But A4 has no subgroup of order 6. So this is a famous counter example. Okay, fine. तो अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका उस ऑर्डर का सबग्रुप हो ही, ठीक है ना। हम आगे देख पाएंगे कि लैग्रांजेस थ्योरम ये ट्रू होता है। आई डोंट नो कि जब सेलो थ्योरम हम पढ़ेंगे, सेलो थ्योरम शायद है नहीं आपके में, तो ये कब नोट एक ये हो गया, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरा नोट कब ये ट्रू होता है। द कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम is true for a finite abelian group. Just finite abelian group, ठीक ना। हमने इसको साइक्लिक के केस में प्रूफ किया हुआ है, आपको पता है कि साइक्लिक के केस में ट्रू तो होता है, लेकिन उससे कम कंडीशन में भी ट्रू हो जाता है कि अगर वो साइक्लिक ना हो, अबेलियन भी हो जाए तो भी काम चल जाएगा, तो भी लैग्रांजेस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू हो पाएगा, ठीक है ना। विद दिस आई विल स्टॉप टुडे। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।